Hello everyone, I welcome you all to my channel Regalia, and our today's lecture is on cell ultrastructure part 2, which is basically the your continuation of the previous lecture of cell ultrastructure that I've delivered. So if you haven't gone through the video yet, it's a request, kindly first watch that video for a more clear insight on this lecture. And if you are new to the channel, guys, subscribe it, and so that you could get more interesting contents in the days to come. And now, without wasting much of your time, let's begin the video. आज का टॉपिक है सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर. And so first we will begin with Golgi bodies. So Golgi bodies, first we'll go through the history. It was discovered by Camillo Golgi in the neural tissue, and he named it as internal reticular apparatus. So initially he came up with this name. Secondly, the name Golgi body was later given by Raman and Kajal. Okay, and Golgi body is also known as lipochondria. So first of all, we will see the structure of Golgi body, what it looks like. So Golgi body, as you can see, it has two phases, a cis phase and the trans phase. What are the functions of cis and trans, we will discuss in the coming lecture. And incoming transport vesicle, so it is a vesicle which is entering through the cis phase, and a secretory vesicle, it is released from the trans phase. Okay, these are cisternae. It is lumen. Lumen is a space. Lumen is basically a space, a gap. You can say cisternae, they are the units of Golgi bodies there, and it is a newly formed vesicle. So let's continue. So you can see cisternae are the smallest functional unit. It's an important question. It can be asked in the exam that the smallest functional unit, then it will be cisternae. Okay. Now dictyosomes. What are dictyosomes? They are basically single stack of cisternae, and they are considered as units of Golgi complex. In classical cytology, they are also called Golgi externum, and they represent the lamellar system. So by dictyosome they mean this complete apparatus, stacking. Okay, it's a stack and it is called a dictyosome. And dictyosome basically it represents the Golgi externum. So there are two types. The Golgi body is basically divided into two parts, Golgi externum and Golgi internum. And the Golgi externum is here. It is represented by dictyosomes. Okay, and which also represents the lamellar system. Then we'll see what is archoplasm. So archoplasm is also known as Golgi internum, and it represents the vacuolar elements in the center. Actually, in this diagram, the vacuolar elements are not shown, but you can imagine that that the Golgi body might contain some of the vacuoles inside these cisternae, and they are known as archoplasm or Golgi internum. Now we'll see stationary cisternae model, and it was given by Farquhar in 1985. According to him, there are two phases, cis phase and a trans phase. Cis phase is known as the forming phase, and trans phase is known as the maturing phase. So the cis phase, it actually faces the endoplasmic reticulum and it receives the immature vesicles. तो होता क्या है कि जो endoplasmic reticulum है, that releases some vesicles into the cis phase, और उसके बाद वो process होता है, that gets processed, and it is released through the trans phase, as you can see in this diagram. So this is the trans phase, and it is the maturing phase, and the secretory vesicles are released. So this model basically tells you about this thing given by Farquhar. Okay, and then we'll see GERL apparatus, or the GERL network, also called as the Golgi endoplasmic reticulum and lysosome network. So this GERL apparatus, it is basically associated with the trans phase, and it produces lysosomes. So the basic function of GERL apparatus is to produce lysosome, and it is rich in acid phosphatase. So it is very natural because lysosomes are rich in acid phosphatases. So the GERL apparatus is automatically it is rich in acid phosphatase. And the major secretory pathway sorting station,
that directs newly synthesized protein. So what it does is that the girl apparatus also performs a function of directing the synthesized proteins to their target cells. ओके, जैसे इसमें लिखा है कि न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट सब सेल्यूलर डेस्टिनेशन. तो जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ओके, वेयर एवर विल बी द रिक्वायरमेंट, दे आर ट्रांसफर्ड टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो सेक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी. हमको तो पता ही है, ये तो मैंने भी आपको पहले बता दी, क्योंकि सेल वॉल फॉर्मेशन आपको याद होगा, उसमें भी ये था कि गोल्जी बॉडी फ्रैग्मो सेक्रेट करते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, जो कि आपका सेल वॉल बनाते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है कि इन्होंने सेक्रीशन की बात की है. इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज. देन वील सी व्हाट आर ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल्स. तो ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल्स पहली चीज़ तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ये होते क्या हैं, दीज आर डेंस सेक्रीटरी ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स, ओके, बट दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म. नाउ अ नोट, Golgi body, they participate in cell plate formation. Okay, and how do they participate? By releasing lomazome, and that lomazome gets aligned by phragmoplast. So it's a little bit complex, so I'll explain you that. See, it's a cell plate. So how is the cell plate formed? Suppose this is Golgi body, okay, and Golgi body is releasing some kind of vesicles that are known as lomasomes. And these lomasomes, they get aligned at the center of the cell with the help of phragmoplasts. And what are phragmoplasts? So phragmoplasts are plant-specific structures that are formed during the late cytokinesis, because it is very much obvious that during the cytokinesis is the phase where the cell divides. So cytokinesis, and it is composed of microtubules, actin filaments, and help in cell plate formation. So the basic function of phragmoplast is to align these lomasomes, okay, along the plane of division, so that the cell can divide properly. It is clear, I think so. So now we'll move on to ribosomes. Now what are ribosomes? Ribosomes, first of all, we'll see the history. It was discovered by Palade in 1953. It is also known as Palade bodies, and it is called known as Palade bodies, okay, and it is also called Claude's particle. It's an important question, अभी तक नहीं पूछा गया है, but it can be asked. They are ribonucleoprotein, means RNA attached to protein. So word से बहुत clear हो रहा है, ribo and nucleoprotein. So RNA when attached to protein. It was first reported in plants by Robinson and Brown. See, history important नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नेवर नो कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा हो, सो ही कैन आस्क द हिस्ट्री. सो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए, ओके. सो लर्न द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, हु फर्स्ट रिपोर्टेड इन प्लांट्स, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ओके. नाउ वील सी द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में जब आप नीट की तैयारी कर रहे होगे तो दैट टाइम ऑल्सो आपने पढ़ा होगा इसको, बट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. सो राइबोसोम, यू नो, 70S and 80S. 70S divided into 50 and 30, and 80S 60 and 40. So kindly don't add these numbers, because 50 and 30 makes 80, but आप लोग कंफ्यूज हो गए कि 70 ऐसा क्यों हो रहा है, because here S stands for Swedberg unit. Swedberg unit, and it जो 50-30 जो 70 बन रहा है, it is based on the sedimentation coefficient, okay, sedimentation coefficient. So kindly don't get confused in this. Now we'll see 50S में क्या होता है. तो 50S में एक 23S soluble rRNA, sorry, Swedberg unit का है, sedimentation coefficient 23S rRNA, 5S rRNA and 34 proteins, okay. Then in the 30S, the smaller subunit, it contains only one rRNA 16S ribosomal RNA and 21 proteins. So proteins are not usually asked in the examination, but if you want to learn, you can learn. It is not very much important from the examination point of view, but you have to learn that in 50S 23 and 5, in 30S 16. Okay, now in the 80S you will find 60 and 40. 60 stands 60 contains 28S rRNA, 5.8 and 5S. So 5.8 rRNA you will find in 60S. Also 40S contains 18S. Now in prokaryotes it was 16S. So I didn't tell you, but 70S is found in prokaryotes
and eukaryotes both. Okay, now don't get confused like 70s कैसे यूकैरियोट्स में मिल रहा है. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम होते हैं, मतलब वो जो आपके राइबोसोम होते हैं, दैट आर 70s इन नेचर. ओके, इसीलिए. एंड 80s इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन यूकैरियोट्स. नाउ आगे बढ़ते हैं. सो 28s, 5.8s, 5s एंड 18s. ओके, नाउ हियर्स अ स्मॉल नोट. न्यूक्लियोलस प्ले अ मेजर रोल इन द बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम. कैसे करता है दैट विल सी, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट लर्न इट. न्यूक्लियोलस, राइबोसोम. एंड राइबोसोम ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन ट्रांसलेशन. तो आपको पता होगा कि ये mRNA होता है, ये राइबोसोम होता है. ओके, एंड राइबोसोम अपना मूवमेंट करता है अलॉन्ग द mRNA एंड प्रोटीन्स रिलीज करता रहता है. ओके, भी तो बहुत छोटी सी मैंने आपको एक आउटलाइन बता दिया, बट आगे इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए आप याद कर लो कि दे प्ले अ की रोल इन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ mRNA टू प्रोटीन. ओके, now we'll see lysosomes. Now lysosomes are the suicidal bags. Okay, बहुत famous line है, suicidal bags of the cell. And lysosomes were discovered firstly by Christian D. Dubé in liver tissue. Okay, so liver के tissue में सबसे पहले he discovered it. And lysosome is filled with acid hydrolases. So कुछ examples हैं, आप याद कर सकते हो, जैसे आपका acid phosphatase हो गया. Okay, acid ribonuclease, acid lipase. सबसे फेमस यही है. फेमस इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही मिलता है, एसिड फॉस्फेटेज. ओके, देन हम देखते हैं इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है. लाइसोसोम्स में पॉलीमॉर्फिज्म होता है. किस टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म? लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी टाइप. सो अभी हम देखते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? वेजिकल्स रिलीज किए गर्ल अपरेटस में. गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम अपरेटस. ओके, अब इसमें क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी को कुछ वेजिकल्स मिले. देन दीज वेजिकल्स जब आपके रिलीज हुए तो उनको हमने कहा ये है प्राइमरी लाइसोसोम्स. ठीक, प्राइमरी लाइसोसोम ने क्या किया? कोई फॉरेन पार्टिकल जो सेल में था उसको इनगल्फ कर लिया. ओके, सो प्राइमरी लाइसोसोम बेसिकली इट इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू फ्रैग्मोसोम. सो ये जो टर्म है फ्रैग्मोसोम, ये तभी बनता है जब प्राइमरी लाइसोसोम इनगल्फ्स अ फॉरेन पार्टिकल. यहाँ पे लिखा भी है कि पार्टिकल्स इनक्लोज्ड इन द फ्रैगमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके, द पार्टिकल्स इनक्लोज्ड इन द फ्रैगमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड फ्रैग्मोसोम. फ्रैग्मोसोम हो गया. देन फ्रैग्मोसोम इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज डाइजेशन वैक्यूल, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैक्यूल. ओके, एंड देन द सेकेंडरी वैक्यूल एक्सपेल्स आउट सम काइंड ऑफ रेसिडुअल मटेरियल. तो बहुत ईजी है. सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेजिकल रिलीज किए जो गोल्जी में गए, वो बन गया प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम ने इनगल्फ किया फॉरेन पार्टिकल, दैट बिकम्स अ फ्रैग्मोसोम. लेटर इट गेट्स डाइजेस्टेड एंड फॉर्म्स अ सेकेंडरी लाइसोसोम, एंड द सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेस्ट द मटेरियल एंड एक्सपेल्स आउट द रेसिडुअल पार्ट. Then we will see microtubule. So the term microtubule was given by Slaughterback in the year 1963. These are the things that you have to learn. And microtubules consist of 13 long protofilaments. क्या होते हैं हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे. और हर एक प्रोटोफिलामेंट इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलेंस. सो ईच प्रोटोफिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलेंस, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल it consists of 13 long protofilaments. Now they arise from microtubule organizing center, MTOC. Okay, MTOC is the microtubule organizing center which is found in the centriolar parts and also the kinetochores. तो काइनेटोकोड्स आपको पता होगा कि जैसे ये है क्रोमोसोम है, एंड क्रोमोसोम जब अलाइन होता है सेल वॉल में, सेल में जब अलाइन होता है तो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अलाइन होता है. स्पिंडल फाइबर्स और जो ये सेंट्रोमेयर है दैट आर कनेक्टेड थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर. इसको हम आगे देखेंगे, जो सेल डिवीजन चैप्टर में इसको पढ़ेंगे. ओके, नाउ दे आर जनरली इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन. होता क्या है कि सेल वॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है बाय ओरिएंटिंग द सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल. सो जो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है उस टाइम जो आपके माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं प्राइमरी वॉल में भी होते हैं, कुछ सेकेंडरी वॉल में भी होते हैं, उनको अरेंज करने का काम जो होता है ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं. नाउ वील सी व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स. सो माइक्रोफिलामेंट्स आर द
एक्टिन प्रोटीन पॉलीमर्स, आपको पता है मसल्स में 2 टाइप के प्रोटीन जो हमारे बॉडी में मिलते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। सिमिलरली सेल में भी होते हैं वो प्रोटीन। तो जो एक्टिन प्रोटीन के जो पॉलीमर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, एंड दे आर द लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन। लीनियर पॉलीमर होते हैं ये, ओके। जी एक्टिन के लीनियर पॉलीमर होते हैं। तो जो जी एक्टिन होता है, जो ग्लोबुलर एक्टिन होता है, जब वो पॉलीमराइज होता है, दैट फॉर्म्स एफ एक्टिन। सो बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स आर नथिंग बट द पॉलीमर्स ऑफ जी एक्टिन दैट फॉर्म्स एफ एक्टिन। अब थोड़ा एक बार एक कंपैरेटिव टाइप की स्टडी कर लेते हैं। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स। मैंने आपको बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय द 13 प्रोटोफिलामेंट्स एंड ईच प्रोटोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ द अल्फा ट्यूबुलिन एंड द बीटा ट्यूबुलिन। ये वही डाइमर सब यूनिट है जो यहाँ पे दिखाई गई है, अल्फा एंड बीटा, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये है आपके माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स में मैंने आपको बताया था कि ये ये जी एक्टिन के बने होते हैं। जो यहाँ पे देखो, ये जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल है, जी एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर ये क्या है, ये एटीपी है, ठीक। तो दीज आर द जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स। ये एटीपी को यूज़ करते हैं और पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमराइज होकर ये एडीपी मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट को रिलीज़ कर देते हैं एंड एडीपी मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर रह जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द माइक्रोफिलामेंट्स, ओके। देन वी विल सी व्हाट आर माइक्रोबॉडीज़। तो माइक्रोबॉडीज़ जो टर्म था, द टर्म वॉज गिवन बाय रोडिन इन द ईयर 1954 एंड दीज आर यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड। यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये, ओके। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ऑल्सो देयर आर 3 टाइप बेसिकली, पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइको एंड स्फेरो। सो पेरोक्सीसोम एंड ग्लाइकोसोम्स आर इंटरकन्वर्टेबल. Now we will see that what are these microbodies. So peroxisome, it was discovered by again Christian D. Dubé, who discovered lysosome, and they take part in the peroxide metabolism. So peroxide is basically harmful for the cell. Excess peroxide releases free radicals that can harm the cell. So what actually peroxisome does is that it is rich in the catalase enzyme, and the catalase enzyme, it breaks H2O2, okay, into H2O. So what happens is, and releases a nascent oxygen, not a free radical. So the nascent oxygen gets released and H2O is formed. As a result, the cell is protected, and it takes part in the photorespiration, beta oxidation of fatty acids. क्या होता है हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. It removes the peroxide, see, as they harm the cell. So मैंने आपको बताया था कि जो peroxide होते हैं उन्हें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं और इस सेल को हार्म कर सकते हैं, इसीलिए इनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। Glyoxysomes. So glyoxysome was discovered by Bridden Batch and Beavers in the endosperm of castor bean. Glyoxysomes, and it is also rich in catalase enzyme, and it takes part in the glyoxylate cycle. मतलब glyoxylate cycle actually क्या होती है, fats stored in seed is converted to carbs, okay. जो सीड्स में जो फैट स्टोर्ड है उसको जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो उसको कार्ब्स की ज़रूरत होती है, तो वो फैट को ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में थ्रू दी हेल्प ऑफ ग्लायोक्सीसोम्स. नाउ व्हाट आर स्फेरोसोम्स? स्फेरोसोम्स डिस्कवर्ड बाय Dangiard, but the term was given by Perner. So the term was given by Perner and discovered by Dangiard. It is involved in the fat synthesis. So ग्लायोक्सीसोम का काम क्या था, फैट ब्रेकडाउन. स्फेरोसोम का काम उल्टा है, फैट सिंथेसाइज करेगा और उसको स्टोर करेगा एंड ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स. सो स्फेरोसोम स्टोर करेगा, ग्लायोक्सीसोम उसको खर्च करेगा. सीलिया एंड फ्लैजिला आपको पता है ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द सेल. तो अब इनके थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं होता क्या है. तो द सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं, इनमें 2 पार्ट होता है. पहला पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम बेसल बॉडी और द ब्लेफेरोप्लास्ट, और दूसरा होता है सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट जिसे कहते हैं हम एक्सोनीम, ओके. एंड ये 9+2 अरेंजमेंट शो करता है. तो ऐसा ये होता है ब्लेफेरोप्लास्ट और ये होता है उसका एक्सोनीम, और 9+2 अरेंजमेंट होता है. ऑल्सो सेंट्रियोल जो होता है इसका, सेंट्रियोल क्या होता है कि 9 फाइब्रिल्स अरेंज्ड एट पेरीफेरी एंड ईच फाइब्रिल हैज़ 3 माइक्रोफाइब्रिल. अभी सेंट्रियोल कहाँ से आ गया, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी बेसल बॉडी है ना, दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल से इसकी बेसल बॉडी बनी होती है, ये वाली जो बॉडी है. और एक्सोनीम हम जो पढ़ते हैं वो बेसिकली हम एक्सोनीम पढ़ते हैं, ठीक है. पर जो बेसल बॉडी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. सेंट्रियोल, इसमें ये कार्टव्हील टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है. 9 फाइब्रिल्स अरेंज्ड एट पेरीफेरी
एंड ईच फाइब्रिल हैज़ 3 माइक्रोफाइब्रिल्स। ओके, देखते हैं हम आगे क्या होता है इसमें। सो these are the central microtubules. So sorry, now this is the structure of your centriole. Yeah, it is centriole. Okay, and it is axoneme of cilia and flagella. This is axoneme and it is the centriole. So जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें सेंट्रियोल में 3 माइक्रोफाइब्रिल्स हैं एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अ कार्टव्हील टाइप स्ट्रक्चर, वही चीज़ मैंने पीछे बताई थी। और यहाँ पे क्या है, 9+2 अरेंजमेंट है, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोट्स को बेसिकली हम डील कर रहे हैं, तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, नहीं तो 9+0 होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, तो ये आप देख लो, नेक्सिन डाइनिन की आर्म्स बनी होती हैं, एग्जाम में आता है आर्म्स कौन से प्रोटीन की बनी होती है। सो आर्म्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। ओके, डाइनिन एंड नेक्सिन की लिंक होती है, नेक्सिन से लिंक्ड होती हैं, डाइनिन की आर्म्स होती हैं। बाकी ये रेडियल स्पोक्स हो गए, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, और बाहर पेरीफेरी में हो गया। नाउ वील सी द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस, द टर्म इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in the cells of Tradescantia. And Hammerling, what did Hammerling do? Hammerling demonstrated the significance of nucleus in the development. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज़ की इन द यूनिसेलुलर एर्गाकोलेसिटा बुलेरिया, जिसमें उनको पता लगा कि न्यूक्लियस के भी अपने डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। एंड न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस mRNA, राइबोसोम्स, tRNA। नाउ ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसमें आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अंदर ये न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन मटेरियल हो गया जो डीएनए होता है कंटेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म जो उसका स्ट्रोमा पार्ट होता है, न्यूक्लियर पोर हो गया, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप जिससे ये एनवेलप्ड रहता है, प्लस उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। सो अभी हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। तो न्यूक्लियर एनवेलप आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज इट इज़ वेरी मच क्लियर इन द डायग्राम। न्यूक्लियर लैमिना इज प्रेजेंट इन द इनर साइड। तो इनर साइड में क्या होता है, न्यूक्लियर लैमिना होता है यहाँ पे, ठीक है। और न्यूक्लियर लैमिना जो होता है उसमें वो 3 प्रोटीन से बनता है, 3 लैमिन प्रोटीन्स होते हैं, लैमिन ए, लैमिन बी और लैमिन सी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है उसमें, और 2 कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स जो ये यहाँ पे बनी हुई हैं, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है प्लस जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, इसको मिला के हम पूरा न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। और जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो 200 to 300 एंगस्ट्रॉम। पेरी न्यूक्लियर स्पेस मतलब स्पेस बिटवीन 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, आउटर और इनर। नाउ यहाँ पे जैसे एम फेस काइनेज है, तो एम फेस काइनेज एक एंजाइम है और ये लैमिन्स को डिसोसिएट कर देता है। तो लैमिन्स जब डिसोसिएट होगी एट द एंड ऑफ G2 फेस, उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तभी आपने देखा होगा कि जो माइटोटिक फेज होता है एम फेज में, जैसे जो आपका जो आपका प्रोफेज होता है, तो प्रोफेज में आपको न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलेगी, क्योंकि एम फेज काइनेज क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। फिर आता है फॉस्फेटेजेस। तो फॉस्फेटेजेस इट एसोसिएट्स लैमिन्स एट द एंड ऑफ एम फेज। एम फेज का एंड मतलब जो टीलो फेज होता है, इसीलिए टीलो फेज में आपको सेल एनवेलप जॉइंट फॉर्म में दिखता है। फिर न्यूक्लियर पोर, तो न्यूक्लियर पोर को एनुलाई बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं, और ये 200 to 400 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। प्लस इट इज़ मेड अप ऑफ 8 एनुलर रिंग्स, 8 एनुलर ग्रैन्यूल्स दैट आर अरेंज्ड इन स्पोक्स अलॉन्ग विद अ सेंट्रल ग्रैन्यूल। ओके, तो 8 ग्रैन्युलर होंगे स्पोक्स के फॉर्म में और एक सेंटर में ग्रैन्यूल होगा। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का एक कॉम्प्लेक्स होता है प्रॉपर। सो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स? इट इज़ अ कोएक्सियल आर्म, देन इट्स अ रेडियल आर्म, साइटोप्लाज्मिक रिंग, nucleoplasmic ring and a transporter. Okay, and the radial arm, it extends outside the pore complex and anchors the membrane. So जैसे ये आपको रेडियल आर्म दिख रही है यहाँ पे, रेडियल आर्म ने क्या कर रखा है कि ये बाहर की तरफ है और इसने इसने एंकर कर रखा है आउटर मेम्ब्रेन को, यही इसमें लिखा गया है। बाकी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन आता भी नहीं है, और ये JRF पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। आर्म्स होती हैं, कोएक्सियल आर्म यहाँ पे मेंशन्ड है, फिर एक ये रेडियल आर्म है, देन साइटोप्लाज्मिक रिंग है इसमें, जो कि पूरी ये जो रिंग होती है साइटोप्लाज्मिक रिंग,
देन एक न्यूक्लियोप्लाज्मिक भी रिंग होती है जो इसमें मेंशन नहीं है, एंड फिर एक ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर ये यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर होता है। ट्रांसपोर्टर वही होगा जो कि आपके मटेरियल्स को न्यूक्लियस और सेल के बीच में, जो मतलब साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्टर की हेल्प से होता होगा। ओके, देन वील सी अबाउट द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक डार्क बॉडी होती है, एंड न्यूक्लियोलस इज यूजुअली अटैच्ड टू द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ अ एनओसी। एनओसी क्या है? एनओसी आपका न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम। सो होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिनको हम एनओसी बोलते हैं, यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स बोलते हैं। अब इसमें 70% प्रोटीन होगा, 30% आरएनए और स्मॉल डीएनए, ये सब कंटेंट है। ओके, तो प्रोटीन पार्ट ज़्यादा होता है। फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, राइबोसोम्स को ये बनाता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। कैसे करता है? कुछ जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स होते हैं ना, उनमें कुछ जीन्स होते हैं, जैसे 16S/R आरएनए होता है, 16S/R आरएनए, उसी तरीके से कुछ जीन्स होंगे जिनका नाम होगा 16S/R डीएनए। ठीक है, ये जब ट्रांसक्राइब होंगे तो ये आरएनए बनाएंगे। फर्दर वो आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करके राइबोसोम बनाएंगे। सिंपल यही लिखा है। देन आता है क्रोमैटिन फाइबर। सो क्रोमैटिन फाइबर सीन इन द इंटरफेस न्यूक्लियस, ओके, एंड एवरेज डायमीटर 230 एंड इट इज़ मोर कंडेंस्ड इन द हेट्रोक्रोमैटिन। तभी हेट्रोक्रोमैटिन थोड़ा डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है, और ये बेसिक यूनिट होता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का। तो क्रोमैटिन कुछ नहीं होता है, डीएनए क्या करता है? कॉइल हो जाता है, कॉइल होकर क्रोमैटिन बना लेता है। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। सो क्रोमैटिन फाइबर ये हो गया। सो इसी के साथ वीडियो का हम एंड करते हैं। एंड आज का मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेम द प्रोटीन present in the flagella of prokaryotes. ओके, सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो में कुछ भी, अगर आपको सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।